Hey everyone, this is Archana from Love Food and Fitness. And today's podcast is very, very special because today my guest has asked for me to cover him. So I'm feeling so happy and so privileged to doing that. So I will not introduce the guest today. Let him introduce himself today. So let's start with your name. What's your name? Hi, my name is Hartik Kaul. Okay. And apart from just the name, how do you like to introduce yourself? I am working for the In for the Cause as inventory manager here and handling some stocks and supply so that our team will accomplish the social goals. That's wonderful. What are your goals in life? My goals is basically to open one NGO, beautiful NGO, and for differently able children only, and uh, and be a helping hand for the underprivileged children and make parents proud and society proud for at me. That's so beautiful. At your young age, you are thinking like that. It's really, really nice. Briefly, can you tell me what In for the Cause is? In for the Cause is basically an NGO where we curate the product made by the neurodivergent adults, and so that their every sale get purchased for themselves. Oh, wonderful. So you also make some products, or you just manage the inventory? I all manage the inventory only. You manage the inventory only. That's wonderful. How many products do you have there? We have basically three projects like Inking Box and socks, box of socks, and Planter Life project. That's wonderful. So, people, if you've not guessed it so far, we are at a beautiful space called In for the Cause, which is doing a lot of things for children or people with disabilities. And if you've not made it so far, let me tell you that Hardik, who we are in conversation with today, is basically an autistic child, and he is doing a marvelous job. So, getting back to Hardik again now. So, uh, Madhviji actually mentioned to me that you one day want to become a CEO of In for the Cause. Is that so? Yeah. That's true? Wonderful. So, what is that you are doing right now here, which you think you can change if you become the CEO? If I can become a CEO of InfoTheCause, then I can open many outlets of InfoTheCause and make the InfoTheCause worldwide popular and aware and make InfoTheCause aware to the many people. That is so wonderful. I think. What do you think you want to convey to autistic people out there? The people who are suffering or who have autism, or the families? I can convey the message to the autism people like hard work is only one thing that never pays, that always pays them. Yeah. And don't be afraid of anything. Always make impossible to be possible. That is so beautiful. And that does not apply to autistic people, it applies to anybody and Everyone, yeah. everybody. Hard work is something, there is no replacement for it. There is just no replace. This is so beautiful. This is so beautiful. You have a twin brother also. Yes. So, what is he doing? Basically, he is working in PNG company as he has completed his IM MBA from IIM Mumbai, and he is working in PNG company as a digital project manager. Oh, that's so nice. You've also done your master's in child psychology. What made you think that psychology is a subject you want to do? Because psychology is the subject where which is a study of a science and a mind, and I love psychology because I could relate the how people can think and how what people can think. Beautiful. So, do you want to kind of work with children in that case because you Yeah, study child psychology yeah. in I particular? want to work for children, and Madhuri ji is launching some disability curriculum so that I could manage all the children with autism, Down syndrome, and cerebral palsy. That is, I wish a lot of people hear this because this is really, really nice. You are challenging yourself to help others. Yeah. That's so beautiful. That's so beautiful. What is one thing, probably one strength of yours, Hardik, which you have and which you can change the world around you?
Yeah, my strength is basically my own parents and my own belief in the God. That's so true. The parents have actually given you a lot And of. because my parents has suffered, and because one day I was, can I speak in Hindi? हाँ जी बिल्कुल. एक दिन मैं बस छोटा था तो मैं बहुत सफ़र कर रहा था पेन से, तो मेरे मम्मी पापा मुझे हॉस्पिटल में लेके गए। तो उस प्रकार से फिर उस प्रकार से मैंने मम्मी पापा को रोते हुए देखा, तो उस प्रकार से मुझे लगा कि मम्मी पापा मुझे रियलाइज़ हुआ कि मम्मी पापा मेरे लिए क्या फ़ील करते हैं। आपको पता है इससे बढ़िया दुनिया में कोई रिलेशनशिप नहीं होता माँ बाप और बच्चे के अलावा. तो अगर बच्चा किसी भी चोट में होता है तो माँ बाप की यही हालत होती है. बट यू आर लकी, है ना, इतने प्यार करने वाले समझने वाले पेरेंट्स मिले हैं. सो दैट्स अ ब्यूटीफुल थिंग. आई ऑल्सो हैव अ ट्विन सिस्टर एक्चुअली. सो हैविंग अ ट्विन ब्रदर में मज़ा आता होगा. Yeah, same because we are unidentical twins. अच्छा, even we are not identical. We are also unidentical as you are saying. So that's so nice. So what do you see yourself? एक last सवाल आपसे पूछना चाहूँगी. What do you see yourself as a person? I see myself as a person like I can achieve many goals in my life, and I can do miracles in my life. Wow. God bless you, and we really hope that you are able to give a lot of people hope, and they I think it's an inspiration. It's completely an inspiration. Beautiful. But like मेरे सारे podcast में होता है, we play a small rapid fire round. I think we'll play with you also. Okay. What's your favorite Bollywood movie? आप movies देखते हो? Yeah, my कौन सी favorite अच्छी Bollywood हो? movie is Durandar the Revenge. Which one? Durandar the Revenge. धुरंधर द रिवेंज. आपको डर नहीं लगा था उसमें? पक्का? दोनों सीख लिया, पार्ट 1 पार्ट 2? First day, first show. फर्स्ट डे फर्स्ट शो. ओ माय गॉड. अकेले मम्मी पापा के साथ? Yeah, okay. अकेले? बिल्कुल डर नहीं लगा? आई हैड माई आईज एब्सोल्युटली क्लोज व्हेन आई वाज वाचिंग वो जो मार धार वाले सीन्स थे ना. बट वेरी गुड. कौन सा कलर आपका आज का मूड डिस्क्राइब करेगा? Green, because green symbolizes nature. Green symbolizes nature. So you love nature? Yeah, I love nature very much. So do you love the sea or the mountains? I love the mountains. Mountains more? The cold breeze? Yeah. Oh, beautiful. Since you mentioned parents, if you get an opportunity today to look at the camera and convey something to your mother, आप क्या बोलना चाहोगे उनको आज? Because mother is only one. Mother एक ऐसी चीज़ है, मदर एक ऐसी पर्सन होती है जिससे आप कुछ भी अपनी बातें शेयर कर सकते हो, और आप बेझिझक से अपने अपने दिल की बातें भी शेयर कर सकते हो, और कुछ भी छुपा नहीं सकते. वो मदर होती है. तो अपनी मम्मा को क्या बोलना चाहोगे आज? आई लव माई मदर वेरी मच. Any mother just wants to hear these 3 things. I love you, mama. यही सुनना चाहती है all the mothers. And I think with that, let's end it with a small little song जो मैं ऐड करना चाहूँगी. अब कोई गाना पसंद है आपको? Yeah. Which one? Let's sing together. Which one? जब कोई बात बन जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा हो हमनवा. दिस इज सो ब्यूटीफुल. मतलब मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट करे हैं, बट ये आज जो आपने मुझे यहाँ बुलाया ये करने के लिए, दिस इज बीन रियली रियली स्पेशल. मीन्स अ लॉट टू मी, एंड आई होप In for the Cause is able to do so much more than it's already doing, and a lot of people come forward, support each other, because world needs to be including everybody. Everybody has a right to live. So let's help each other, let's support each other. Lots of love to all of you. So this is In for the Cause part 2, I can say that. क्योंकि कई बार हम लोग जो कर रहे होते हैं उसकी बात तो करते हैं, बट पीपल बिहाइंड द सीन जो होते हैं उनकी बात करना हम भूल जाते हैं. तो आई थॉट इट इज इम्पॉर्टेंट टुडे कि हम उनके बारे में बात करें, जिसकी वजह से इन फॉर द कॉज काफ़ी स्मूथली रन करता है.
वहाँ पे जो बच्चे आते हैं या पीपल हु कम देयर फॉर गाइडेंस, फॉर सपोर्ट और फॉर मेकिंग सो मेनी थिंग्स, सबको जो देखभाल करता है, पानी पिलाता है, गाइड करता है, सामान संभालता है, दैट इज निखिल। और निखिल भैया जैसे भी बच्चे बुलाते होंगे आपको। सो आई वॉज जस्ट टॉकिंग टू हिम एंड इट वाज सच एन इंस्पिरेशन कि ये सुबह से लेकर रात तक अपने परिवार के लिए कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं। तो लेट अस लिसन फ्रॉम हिम ओनली कि वो कहाँ कैसे जिंदगी अपनी शुरू करते हैं, क्या स्ट्रगल है एंड व्हाट ऑल ही इज डूइंग। निखिल अपने बारे में बताओ। हेलो, मेरा नाम निखिल है। मैं इन्फो द कोर्स में पिछले 3 साल से काम कर रहा हूँ। बाकी मैं सुबह मॉर्निंग में 4:30 से लेके 8 साढ़े 8 बजे तक डिलीवरी की जॉब करता हूँ। उसके बाद मैं 9:30 से ऑफिस ज्वाइन कर लेता हूँ और उसके बाद मैं 5:30 तक या 5 o'clock तक उसके बाद में मैं अपना डीजे का काम करता हूँ या फिर मेरी मोबाइल रिपेयरिंग की शॉप भी है, अरे मैं वाह, उसमें भी काम करता हूँ। क्योंकि अभी मैं टोटल 4 काम कर रहा हूँ मिला के। आप सोते कब हो? मैं सोने का टाइम मेरा 11-12 बजे से लेके 4 बजे तक का रहता है मोस्टली। बाप रे। तो आपके और भी बहन भाई हैं या आप ओनली बच्चे? हाँ, हो मेरी आपके एक वहाँ? छोटी सिस्टर है मुझसे, उसकी भी शादी हो रखी है। शादी हो रखी हाँ है, जी। तो घर परिवार की जिम्मेवारी सारी आपके ऊपर है। हाँ, मेरे ऊपर है। और बट मतलब आपके इतना सारा काम करने के बाद आपको शरीर में कुछ जान बचती है अगले दिन यहाँ पे देखने? अभी तो आई थिंक मुझसे ज्यादा फ्रेश लग रहे हो वैसे तो अभी। नहीं नहीं होता है, बट मेरे को काम करना पसंद है। कि जिस दिन काम ना करो उस दिन ज़्यादा तकलीफ होती है। काम करते रहो तो शरीर चलता रहता है, ना करो तो ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि आदत पड़ चुकी है तो उस हिसाब से होता है फिर। तो आप जैसे वो बता रहे थे मेरे को कि आप हरियाणवी हो और आप हाँ। कुछ भी जिसको हम कहते हैं ऐब है, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं नहीं, तो ऐसा इन कुछ चीजों नहीं। से कैसे बचे हुए अभी तक? क्योंकि वो हमें अपनी फैमिली को देख के पता लगा कि हमारे ऊपर जिम्मेवारी शुरू से है, तो हम ही अगर यही सब करेंगे तो फिर आगे परिवार कौन चलाएगा। तो उसी हिसाब से अपने हिसाब से हम चलते हैं फिर। बहुत अच्छा। इन फॉर द कॉज में आप क्या क्या करते हैं? इन फॉर द कोर्स में मैं मैनेज करता हूँ, ऑफिस मैनेज करता हूँ। जो भी यहाँ पे काम होता है, छोटे से लेकर बड़ा कुछ भी मैनेज करना होता है या फिर कुछ भी होता है तो उसको मैं मैनेज कर लेता हूँ, जो अपने तरीके से या जैसे भी। यू नो विद ऑर्गेनाइजेशंस जो होती है ना, उनकी सक्सेस स्टोरी उनकी सिर्फ नहीं होती, जो पीछे लोग खड़े हुए उनको संभाल रहे होते हैं, उनको घड़ी घड़ी छोटे से छोटे काम में सपोर्ट दे रहे होते हैं, आई थिंक उनकी मेहनत होती है, उनके सैक्रिफाइस होते हैं, जिसकी वजह से एक ऑर्गेनाइजेशन बनती है। तो इन फॉर द कॉज के ये है रीज़न जो आज इन फॉर द कॉज जहाँ पहुँचा है, क्वाइट अ बिट काफ़ी है। इनके ऊपर काफ़ी दारोमदार है ताकि इन फॉर द कॉज चलता रहे और लोग इसके साथ जुड़ते जाएं। बट ऐसे नहीं जाने देंगे इनको भी एक गाना गाना पड़ेगा, क्योंकि हमारी दैट्स द ट्रेडिशन वी हैव एट लव फूड एंड फिटनेस। तो आप गाना गाते हैं? हाँ, गा लेता हूँ। लोग सुनता हूँ तो अब डीजे चलाना स्टार्ट किया है तो तब से तो सुनता हूँ, तो थोड़ा बहुत गा भी लेता हूँ। अच्छा, गाना गाने से पहले कल करण जौहर वाला रैपिड फायर खेलें आपके साथ भी? मुझे पता नहीं है क्या होता है, बाकी आप बता सकते हैं आप कुछ भी कम अक्षरों में जवाब देना है। ठीक है, और कुछ सही गलत नहीं है, जो मन में आ रहा है आप उसको बोलो। ओके। ठीक है। सबसे ज्यादा प्यार आप किसको करते हो दुनिया में? वाइफ को या मदर को? एक और पूछ लेती हूँ बात। बहुत। वो वरना मार पड़ेगी घर जाकर। फिर दोनों में अलग अलग वो होगा, तो इसलिए कहना पड़ता है वो। कहना पड़ता है। अच्छा ठीक है। आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है? मेरी फेवरेट मूवी, मैं फेवरेट तो इतनी खास कोई है नहीं, क्योंकि मैं मूवी देखने का टाइम कब मिलता टाइम होगा नहीं आपको? मिलता। अभी पहले तो मिलता था, बट फेवरेट तो जो सही लगती है वो ठीक है। अब जैसे कभी कभी हम फर्स्ट टाइम कुछ करते हैं तो वो ज़्यादा पसंद आ जाता है, तो उस टाइम तो फिर वही ठीक लगता है। ये है। चलो, क्योंकि मूवी देखने का टाइम नहीं, सवाल गलत हो गया हमारा। और पूछे तो सबसे कौन सा त्यौहार आपको कौन सा पसंद है? होली, दिवाली या हरियाणवी कोई स्पेशल त्यौहार होता है जिसके बारे में नहीं पता? दिवाली और होली दोनों होते हैं। हाँ। भांग पीते हो? नहीं। नहीं पीते हो? नहीं। पक्का? हाँ। चलो, अपनी पसंद का कोई अच्छा सा सुंदर सा गाना गा दो। गाने सुनने का टाइम तो मिल जाता होगा। मिल तो जाता है। चलो, मैं भी साथ में गाऊंगी, शुरू करो। ऐ काश के अब होश में हम आने ना पाए, बस नगमे तेरे प्यार के गाते ही जाए। ऐ काश के अब होश में हम आने ना पाए। बहुत अच्छा। लगे रहो बच्चे, काम करते रहो, मेहनत करने से मत चूकना कभी भी, और गलत काम मत जो भी कर रहे हो वही कंटिन्यू करना। गॉड ब्लेस यू एंड प्लीज वैल्यू आवर केयर टेकर्स अराउंड अस बिकॉज they are and therefore we are. So lots of love once again to all of you.